Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام وہی ہیں جنہوں نے کفر کیا اور آپ لوگوں کو مسجد حرام سے روکا اور قربانی کو بھی روکا جو رکی پڑی تھی اپنے جگہ پر پہنچنے سے۔ اگر مومن مرد اور مومن عورتیں نہ ہوتی جن کو آپ نہیں جانتے ہیں کہ آپ ان کو پیس ڈالیں گے، پھر آپ اس کی وجہ سے بڑی خرابی میں پڑ جاتے بغیر کسی علم کے، تاکہ اللہ رب العزت اپنی رحمت میں جسے چاہے داخل فرمائے۔ اگر وہ ایک طرف ہو جاتے تو ہم ان لوگوں کو جو ان میں سے جنہوں نے کفر کیا دردناک عذاب کا مزہ چکھاتے۔ گزشتہ آیات میں اس بات کا ذکر تھا کہ اگر کافر آپ سے جنگ کرتے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے، پھر نہ تو ان کا کوئی حمایتی ہوتا نہ وہ اپنے لیے کوئی مددگار پاتے۔ اور یہ اللہ کی سنت ہے، اس کا اصول ہے جو پہلے سے چلا رہا ہے کہ جب بھی باطل حق سے ٹکرایا تو باطل خواہ کتنی طاقت کے ساتھ ہو، حق کے سامنے اسے پاش پاش ہونا پڑا۔ اور یہ اللہ کی سنت ہے، اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا ہے۔ پھر بھی اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو آپ سے روک دیا اور آپ کو ان سے روک دیا، اور یہ مکے کے اندر ہوا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب بھی ہو گئے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ صرف اس وجہ سے کہ وہ جانتا جو تم کر رہے ہو، وہ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ تو اس نے کامیاب کرنے کے بعد بھی حرم کے اندر، مکے کے اندر خون خرابے سے مسلمانوں کو روکا۔ یہ اللہ کی مصلحت تھی جو مصلحت بعد میں واضح ہو گئی۔ اب اس کے بعد کافروں کا زور، ان کی زبردستی اور ان کی ہر درمی کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ جنگ اگر ہونا ہوتی تو اللہ رب العزت حکم دے دیتا، جنگ ہو جاتی اور مسلمانوں کو کامیابی مل جاتی، لیکن اللہ رب العزت نے صلح کے ذریعے ایک بات وہاں کے تمام لوگوں کو یہ دکھا دی کہ جس حرم سے، جس کعبے میں آنے والے زائرین کو کبھی بھی کسی حال میں روکا نہیں گیا، یہاں تک کہ اگر کوئی دشمن بھی آ جائے اور قبیلے کے لوگ اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں، وہ کعبے کے اندر داخل ہو جائے تو اسے قتل نہیں کرتے تھے۔ سامنے بیٹھا ہوا ہے کعبے کے اندر، حرم پاک میں وہ بیٹھا ہوا ہے، معلوم ہے کہ بس اسے بس ہم پائیں گے تو قتل کر دیں گے، لیکن چونکہ حرم کے اندر وہ بیٹھا ہوا ہے تو جب تک وہ حرم میں ہوگا اسے قتل نہیں کرتے تھے۔ یہ بہت
बड़ा उन लोगों का अपना वो था, अमन का पैगाम था कि किसी भी हाल में हम काबे की हुर्मत को, काबे की अज़मत को कभी पामाल नहीं होने देंगे। और जो ज़ायरीन होते थे, चाहे वो हज करने वाले हों, चाहे वो उम्रा करने वाले हों, खा किसी भी कबीले से हों, कहीं से भी ताल्लुक़ रखते हों, दोस्त हों, दुश्मन हों, अजनबी हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उनका रास्ता कहीं पर भी, जहाँ से वो सफ़र करते थे, मक्के तक, हरम तक, उनको कभी कोई रोकने वाला नहीं था। लेकिन जब उसी हरम पाक के ज़ियारत के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके जानिसार सहाबा 1400 की तादाद में गए, तो हरम पाक की हुर्मत को, उसकी अज़मत को पामाल करने वाले वही लोग थे जो कभी उसकी अज़मत के लिए मर मिटते थे। तो अल्लाह ने जंग रोक कर लोगों को ये दिखा दिया कि देखो, जो हरम की पासदारी का, हरम की अज़मत का गीत गाते थे और उसके गुन गाते थे, वही लोग हरम पाक से रोकने वाले बन गए। और रोक किसको रहे? अपने भाई बंधुओं को, अपने रिश्तेदार को, अपने ही करीबी को, अपने ही दोस्तों को, अपने ही इलाके के लोगों को, अपने ही घर के लोगों को। भाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर जो है कहाँ था? मक्के में था। आज हरम पाक जो वसी कर दिया गया है, जो कुशादा किया गया है, तो आप हरम पाक के एक साइड में जब जाएंगे तो आपको एक लाइब्रेरी मिलेगी, कुतुब खाना। वो कुतुब खाना, वो लाइब्रेरी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकान है, आपका घर है। क्योंकि आपको नबूवत जो मिली इक़रा के ज़रिए मिली, पढ़ो। अल्लाह ने हुक्म दिया, जैसे नबी बनाया फ़ौरन हुक्म नाजिल किया, इक़रा पढ़ो। तो आपके घर को वहाँ के लोगों ने ये क्या किया कि लाइब्रेरी की शक्ल में तब्दील कर दी। आज वो हरम पाक के अंदर है आपका घर। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ के रोकने वाले जो लोग थे वो कुरैश के लोग। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबीले कुरैश के। रोक किसके लिए? सहाबा को रोक रहे। सहाबा कहाँ थे? वो मक्के के रहने वाले। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं, हज़रत अली हैं, हज़रत उमर हैं, दिगर तमाम सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अलैहिम अजमाइन। ये सब कहाँ से आए थे? सब मक्के से ही तो मजबूर होकर हिजरत करके मदीने गए थे। आज वो ज़ियारत के लिए आ रहे हैं तो अपने भाइयों को ही रोकने वाले कौन बने? यही लोग बने। तो अल्लाह ने फरमाया कि ये वही लोग हैं जिन्होंने कुफ्र किया था। इन्होंने मस्जिद हराम से आप लोगों को रोका और क़ुरबानी को भी उसकी जगह पर नहीं पहुँचने दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निशानी के तौर पर क़ुरबानी के जानवर भी लेके गए थे, और क़ुरबानी के जानवर मिना में ज़बह किए जाते हैं। तो क़ुरबानी के जानवर भी उस मकाम तक पहुँचने से उन्होंने रोक दिया। हालांकि हम लोगों को ज़हन नशीं रहना चाहिए कि उम्रा करने वाले के ऊपर क़ुरबानी वाजिब नहीं है। मतलब अगर आप उम्रा करने जाए, हम उम्रा करने जाए, या कोई भी उम्रा करने जाए, तो उम्रा करने वाले पर क़ुरबानी वाजिब नहीं है। हाँ, हज में क़ुरबानी वाजिब होती है। हज में क़ुरबानी वाजिब होती है। उसकी 3 शक्लें हैं हज की, जिनमें से एक शक्ल में क़ुरबानी वाजिब नहीं होती है। 2 शक्लों में क़ुरबानी कह लीजिए वाजिब होती है। अगर कोई शख्स क़ुरबानी नहीं कर सकता है किसी वजह से, तो उसके ऊपर 7 दिन के रोज़े गोया कि वाजिब कर दिए जाते हैं, जिनमें से 3 रोज़े वहाँ रखने हैं उसको, और उसके बाद 4 रोज़े घर आकर रखने हैं, चाहे जब वो रख ले। गोया कि 7 रोज़े कम से कम उसको रखने हैं। तो इस तरह उसकी गोया कि तलाफ़ी होती है क़ुरबानी की, वरना हज में क़ुरबानी होती है। तो अल्लाह ने फरमाया कि उन्होंने रोका। मेरे उसूल के मुताबिक तो यही था कि हम आपको इजाज़त देते कि आप उनसे जंग कीजिए, और आपको हम कामयाब भी कर देते, और किया भी। उसके बाद वो सब के सब कत्ल किए जाते, मारे जाते, वगैरह वगैरह। लेकिन इसमें जो एहतिमाल था, जो मसलहत थी रोकने की, अल्लाह ने फरमाया कि बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने छुप छुपा कर इस्लाम कबूल किया था।
उन लोगों से काफिरों से छुपकर इस्लाम कबूल किया था और इस्लाम कबूल करने के बाद वो मक्के में ही थे, वो मदीने नहीं आ पाए थे, वो मदीने नहीं आ पाए थे। लिहाजा अगर अब जंग होती तो आप शायद ये समझते कि जैसे तमाम काफिर मौजूद हैं वैसे ही ये भी शख्स उन्हीं में से है, नतीजे के तौर पर आप किसी मुसलमान को कत्ल कर देते तो उसका वबाल आपके ऊपर आता, उसकी आपकी गिरफ्त हो जाती। इसलिए जो है अल्लाह ने आपको रोक लिया। दूसरी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मज़ीद जानता था इस बात को कि अभी कितने लोग इस्लाम लाने वाले हैं, कितने लोगों के दिल में इस्लाम जो है घर कर गया था, बस वो इस्लाम लाना चाहते थे, मौके की वो तलाश में थे। अभी उनको मौका नहीं मिल रहा था या तो हिजरत करने का या ये कि अपने इस्लाम कबूल करके किसी तरह अपने आप को महफूज रखने का उनको मौका नहीं मिल पा रहा था। तो लाना चाहते थे लेकिन ला नहीं पा रहे थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जंगबंदी के ज़रिए, सुलह सफ़ाई के ज़रिए इस बात को भी किया कि जो लोग ईमान लाने वाले हैं, सन 6 हिजरी में सुलह हुई थी, 8 हिजरी में मक्का फ़तेह हुआ, तो 2 साल में मक्के से जितने लोग ईमान लाने वाले थे वो ईमान ले आए और उसके बाद उन्होंने हिजरत की और उनको मुकम्मल तौर पर यह हुक्म हो गया कि जो लोग मक्के में अब ईमान लाएंगे उनको हिजरत करके मदीने आना है। लिहाजा जब सारे लोग आ गए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने देख लिया कि अब वहाँ से ईमान लाने वाले अभी कोई नहीं है, तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि अब आप मक्के पर चढ़ाई कर दीजिए और जाइए उसे फ़तेह कर लीजिए। चुनांचे सन 8 हिजरी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फ़तेह कर लिया। वो एक बात अलग है कि मक्का फ़तेह होने के बाद फिर जो फतूहात का दरवाज़ा खुला, लोगों के इस्लाम लाने का जो दरवाज़ा खुला, तो लोग जूक दर जूक कबीले के पूरा कबीला, पूरा कुंबा, पूरा घर आकर जो है इस्लाम कबूल कर रहा था। और आज अल्लाह ने उसकी ये बरकत अता की है कि वहाँ पर एक भी घर आपको काफिर का नहीं मिलेगा, एक भी घर काफिर का नहीं मिलेगा। अल्लाह ने हर एक को कलमे की तौफीक अता कर दी। उनकी आल औलाद, उनकी नस्लें या जो लोग भी गए वहाँ पर है। जो हरम पाक का कह लीजिए कि ख़ास एरिया है, उसका जो हदूद हरम कहलाता है वो काफ़ी बड़ा है। एक तो ये कि काबा ये जो छोटा सा है जो हमारे सामने एक कमरे की शक्ल में दिखाई पड़ता है जिस पे गिलाफ चढ़ा हुआ होता है, वो तो काबा है। उसके चारों तरफ मस्जिद बनाई गई है जो मस्जिद हराम कहलाती है, ठीक है ना। वो मस्जिद अंदर भी सहन है, बाहर भी लान है, सहन है। तो वो जो वसी करके फैलाई गई मस्जिद वो पूरा जो है एक हुदूद हरम है जो अंदर का है। उसके बाद जो हुदूद हरम में जो चीज़ आती है, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसकी तरफ इशारा किया, वो तकरीबन 18-20 किलोमीटर का फासला है। वो हुदूद हरम में जो तमाम जगह शामिल होती हैं वो तकरीबन कितना आता है, 18-20 किलोमीटर का। या यूँ कह लीजिए कि जिधर हजर अस्वद का रुख है, हजर अस्वद का जिधर रुख है यानी जिस तरफ हजर अस्वद है उस तरफ का एरिया जो है वो तकरीबन 17 या 18 किलोमीटर का आता है। और हजर अस्वद का जो पीछे का एरिया है यानी जो रुकन यमानी की तरफ के जो एरिया है उधर जो है तकरीबन 14 किलोमीटर का एरिया आता है। तो 18 किलोमीटर इधर और 14 किलोमीटर उधर। अब ये आप जोड़ लीजिए तकरीबन 30-32 का फासला बन गया। इतनी दूर जो है वो हदूद हरम है, यहाँ तक आपको एक भी काफिर नहीं मिलेगा, यहाँ तक आपको कोई भी एक काफिर नहीं मिलेगा। जो वहाँ पर गए हुए हैं, मान लीजिए सऊदीया फ़र्ज कर लीजिए या कहीं और, तो रियाज में आपको मिलेंगे, वो किसी और में मिलेंगे, दम्माम में मिलेंगे, दूसरे शहरों में आपको मिलेंगे, लेकिन जो हदूद हरम है वहाँ पर आपको नहीं मिलेंगे। यहाँ तक कि ये जो अंग्रेज़, ये जो हुकूमत वहाँ की मौजूदा है, जिनका सपोर्ट लिए हुए है, जिनकी वजह से अपनी हिफाजत वो कर रही है, उनको भी हदूद हरम में दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। उनके लिए उस एरिया के बाद कैंपस बनाए गए हैं, जगह बनाई गई हैं, वहाँ पर वो होते हैं, लेकिन हदूद हरम जो है उसके अंदर उनको दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। तो अल्लाह ने फरमाया कि ये 2 बातें थी, एक तो कि जो मुसलमान थे वो मारे जाते, दूसरे के जो ईमान लाने वाले थे
تو وہ ایمان نہیں لا سکتے تھے، وہ محروم ہو جاتے. تو اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے رحمت سے جسے چاہتا داخل فرما دیتا. ہاں اگر یہ کافر ایک طرف ہوتے، مسلمان سارے ایک طرف ہوتے، یہ ملے جلے نہ ہوتے، ان کا معاملہ بالکل الگ، ان کا معاملہ بالکل الگ، تو ہم اسی وقت آپ کو اجازت دے دیتے کہ اب آپ چڑھائی کر دیجئے، بلا تکلف جائیے اور فتح کر لیجئے. لیکن ملے جلے تھے، اس لیے جو ہے مصلحتاً جو ہے روکا گیا ہے. کیونکہ ملے جلے جب ہوتے ہیں تو اس میں اپنے بھی آتے ہیں اور دوسرے بھی آتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ الگ ہوتے تو ہم ان کو دردناک عذاب کا مزہ چکھاتے، یعنی آپ کے ذریعے اسے فتح کرا دیتے اور ان کو شکست سے دوچار کر دیتے. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے عفو اور اپنے رحمت میں داخل فرمائے اور ایمان کامل عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.